Doctors and parents, a very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, we're gonna discuss about the NEET PG 2023 stray round eligibility rules and regulation. The NEET PG 2023 counseling has come to end finally after 2 to 3 months of the complete rules and regulation. The complete disaster days has finally come to end. Yes, your NEET PG 2023 All India stray round is going to be start from tomorrow. So in this session, we're going to discuss the complete details regarding that, exactly how many seats can come, what's the rules and regulation for that, who will be the eligible for the stray round vacancy. If you have already allotted a seat in round 3, then what can happen? Allotted in your straight round 3, then whether you can join and leave the seat or not, what will happen to your security deposit, and again if you got any seat in your straight round vacancy, then what gonna happen to you. So the complete counseling has come to end. The seat matrix and the registration process is to be start by today. So before that, if you're new on this channel, if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it, as well as do join our Telegram channel Admission Media, because whatever the latest updates and the PDF we will be continuously sharing with you, as well as we will be with you till the last date of admission, that is 20th of October. Even if you haven't got the seat till now, or even in the future if you are not getting the seat, again you are contacting us till the 20th of October. Then again, if there is any eligibility left out for you, or your eligibility is still there and seats are there, then without any doubt we can allot the seat even on the lower marks. I mean the just eligible score, the higher clinical branches will be also possible, डिपेंडिंग डेट एग्जैक्टली कहाँ पे सीटें बची हैं, कितनी सीटें बची हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, बट उस मोमेंट के लिए बजट क्या होगा, अभी आप जो सोच रहे हो अप्रॉक्सीमेटली डबल ऑफ दैट. यस, आप जो भी बजट अभी माइंड मेकअप करके चल रहे हो, जस्ट बी रेडी टू डबल इट, एंड देन लास्ट मोमेंट पे आपको सीटें मिलेंगी, बिकॉज देर आर मल्टीपल ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन हैज बीन चेंज इन द मल्टीपल ऑफ द स्टेट्स. रूल्स एंड आई मीन काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ टिल नाउ, Rajasthan, if you look at the Rajasthan, the great thing happened. Each and every seat has been allotted. Yes, anatomy, physiology, zoology, each and every branch has been allotted, and the allotment has been done for their state candidate only. Those candidates who are from the other states or non-domicile of Rajasthan, the clause of eligibility, they haven't got the seat in Rajasthan till now. Same thing is happening for MP, that is Madhya Pradesh. लोगों को यही लग रहा है कि एनआरआई डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, एमपी में तो सीट मिल जाएगी. रिजल्ट कैंसिल हुआ था. ऑल इंडिया राउंड के जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उनको रिमूव भी किया जा सकता है फ्रॉम देयर ऑल इंडिया आई मीन स्टेट राउंड 3 रिजल्ट. बट अगेन अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होना है, क्योंकि द सेम क्लॉज ऑफ राजस्थान इज अगेन अप्लाइड इन एमपी ऑल्सो. सारी सीटें उनकी पहले इनके स्टेट के बच्चों को अलॉट की जाएंगी. उसके बाद अगर कोई लेफ्ट आउट होता है, then the other states candidates can get the seat for that. That is, अगर एमपी में 0 नंबर पे भी कोई कैंडिडेट है और उसका डोमिसाइल एमपी है, तो पहले वो सीटें उसको अलॉट होंगी. देन अगर आपका स्कोर 350 और आप नॉन डोमिसाइल हो, तब आपको अलॉटमेंट मिलेगी. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम या क्या आपके चांसेस आएंगे. इफ आई टॉक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्ट्रे राउंड, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अलॉटेड द सीट्स इन राउंड 3, ऑल इंडिया राउंड 3, मतलब कि अगर आपने आइदर ऑल इंडिया राउंड 1 राउंड 2 में आपने ज्वाइनिंग कर ली है, या राउंड 3 में आपको अलॉटमेंट हुआ था, वेदर यू ज्वाइन द सीट और डोंट ज्वाइन द सीट. लिस्ट ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स लिस्ट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड. ये 23,500 बच्चे ऑलरेडी नॉन एलिजिबल हैं फॉर द स्ट्रे राउंड, मतलब कि दीज 23,000 कैंडिडेट्स आर नॉन एलिजिबल टू अप्लाई इन द स्ट्रे राउंड. अगेन, if your name is not in the list but you have got the allotment in your all India round 3, मतलब कि आपका लिस्ट ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट में नेम नहीं है, बट आपको सीट अलॉटेड हुई है ऑल इंडिया राउंड 3 में, देन अगेन आपकी एलिजिबिलिटी स्ट्रे राउंड के लिए नहीं रहेगी. इन द मीन टाइम, इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड योर सीट इन योर स्टेट राउंड 1, राउंड 2, और अभी जो राउंड 3 का रिजल्ट आया है, इसमें अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली, then again you will be non-eligible for your stray round. Reason I am telling you, what will happen, MCC has already published the list of joint candidates, that these are the candidates who has already joined till round 3. ये कैंडिडेट्स अभी सीटों को रिजाइन नहीं कर सकते हैं. दिस इज देयर फाइनल जर्नी ऑफ द नीट पीजी 2023. आपको इसी सीट के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा. अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो या सीट छोड़ते हो तो काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा. सीट लिविंग पेनाल्टी और XYZ चीज़ें एक्स्ट्रा में आपके ऊपर लगाई जाएंगी. बट अगेन आप स्टेट राउंड के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे. स्टेट्स राउंड 3 में जो भी सीटें मिली हैं,
दिस इज योर फाइनल सीट। इसको आप स्टेट राउंड 3 से राउंड 4 दैट इज मॉपअप से स्ट्रे में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। हर स्टेट का ये रूल है। अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली तो अगेन यू कैन रिजाइन द सीट, बिकॉज जैसे ही आप ज्वाइनिंग करोगे, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे ही स्टेट्स के कंप्लीट होंगे, they will be publishing a list to the they will be sending the list to the MCC in which that जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में स्टेट्स में ज्वाइन कर लेंगे, आई एम नॉट सेइंग अलॉटेड, अलॉटेड इज फॉर ऑल इंडिया राउंड 3 ओनली, बट अगर आपने स्टेट्स राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीटें ज्वाइन कर ली हैं तो ये लिस्ट आपको MCC को शेयर किया जाएगा। इवन अगर अभी भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो या सीट मैट्रिक्स के बाद चॉइस फिलिंग भी करते हो, बिफोर द रिजल्ट यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर। मतलब कि अगर आपने स्टेट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीटें ज्वाइन कर ली, नॉन एलिजिबल फॉर द स्टे राउंड, अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट भी कर दिया, चॉइस फिलिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया, रिजल्ट के पहले आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आपको अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द सीट इन योर स्टेट। इन द मीन टाइम अगर आपका नेम ऑलरेडी लिस्ट ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स में अवेलेबल है, दैट इज इन योर स्टे राउंड, द जो ऑल इंडिया की लिस्ट आई हुई उसमें भी अगर आपका नेम है तो अगेन यू विल बी नॉन एलिजिबल फॉर द स्टे राउंड। साथ में अगर आपको मॉपअप राउंड में दैट इज राउंड 3 में ऑल इंडिया में कोई सीट मिल चुकी है, अलॉटमेंट है, ज्वाइनिंग नहीं किया, डजेंट मैटर, अलॉटमेंट भी है, तो आप भी स्टे राउंड के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे। सेकंड, द बिग एंड द मेजर रूल इज हियर, स्टे राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है। इफ यू गॉट एनी अलॉटमेंट इन योर स्टे राउंड, दैट इज द फाइनल राउंड ऑफ योर ऑल इंडिया नीट पीजी 2023, अगर अलॉटमेंट मिल गया, आपने ज्वाइनिंग नहीं की ड्यू टू एनी रीजन, देन योर सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फोरफिटेड एज वेल एज यू विल बी डिबार्डेड फ्रॉम योर नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग, दैट इज 1 साल के लिए आपको नीट पीजी या नेक्स्ट पीजी जो भी होने वाला है इन फ्यूचर, उसके लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। मतलब कि स्टे राउंड में सीट मिल गई, नहीं लिया, किसी भी ब्रांच का हो, डजेंट मैटर, सीट मिल गई, छोड़ दिया आपने या ड्रॉप कर दिया, तो 1 साल के लिए आपको नीट या नेक्स्ट जो भी होने वाला है इन फ्यूचर उससे आपको बैन कर दिया जाएगा। मतलब कि हो सकता है आपको एग्जाम दे सको, एग्जाम यू कैन राइट द एग्जाम, बट यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया एज वेल एज इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब कि आपको 1 ईयर का डिबार्ड भी रहेगा। तो अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो मेक श्योर टू पुट ओनली दोज ब्रांचेस जो आपके लिए लग रहा है कि आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो यू विल बी ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज, अदरवाइज डोंट गो टू ब्लॉक द सीट, बिकॉज अगर आप वो सीट अलॉटमेंट ले लेते हो, ज्वाइनिंग नहीं करते हो, तो मल्टीपल क्लॉज और चीज़ें भी हो सकती है, 1 ईयर के लिए बैन भी हो सकता है। इन फ्यूचर सम लीगल एक्शंस कैन ऑल्सो बी टेकन बिकॉज यू आर ब्लॉकिंग अ सीट। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली सीट मैट्रिक्स में सीटें कितनी आएंगी, नो सीट हैज़ बीन इंक्रीज टिल नाउ। स्ट्रेट राउंड में अभी तक हमने कभी नहीं देखा है कि सीटें इंक्रीज की गई होंगी, बट दिस ईयर द रूल्स एंड रेगुलेशन इज कंप्लीटली न्यू। हो सकता है थोड़ी बहुत सीटें एड ऑन भी हों, बट ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 600 to 750, ओनली 600 to 750 इंक्लूडिंग क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, DNB डिप्लोमा, NB डिप्लोमा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल, सारे सीटों को अगर हम मैचअप भी कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 600 to 750 या 800 एट मैक्स सीटें आने के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा स्टे राउंड में सीटें नहीं आ रही हैं इफ़ यू गोना लुक एट द डेटा एंड द एवरीथिंग। सो अगर अभी भी आपको स्टेट राउंड की सीट ड्रॉप करके आप ऑल इंडिया में जाना चाहते हो तो यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। सीटें मिल गई, वेल एंड गुड, नहीं मिला तो बी रेडी टू प्रिपेयर एंड गिव द ड्रॉप ऑल्सो। अभी भी 90% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हर स्टेट्स में अप्लाई किए हैं, सीटें नहीं मिली हैं, एंड दे आर स्टिल थिंकिंग दैट इन द लास्ट मोमेंट दे विल गेट द सीट in all India also because they have made the NRI document. Since the day one or since the day the counseling has begun, we are speaking continuously saying NRI document बनाने से सीट नहीं मिलेगी and it will come to end that आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, एलिजिबिलिटी होगी, बजट होगा, एलिजिबिलिटी होगी, डॉक्यूमेंट होगा, बजट होगा, बट सीट नहीं होगी। इवन ऑन द स्कोर ऑफ 220, 230, 350 के भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने चीज़ें रेडी की हैं, बट सीटें इनको नहीं मिलेंगी क्योंकि रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी चाहिए। सीटें ऑलमोस्ट ओवर हैं। आप किसी भी स्टेट के अलॉटमेंट को चेक कर लो, किसी भी ऑल इंडिया की अलॉटमेंट, फाइनल सीट मैट्रिक्स मोस्ट प्रॉब्ली बाई टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग आ जाएगा, देन यू विल गेटिंग आइडिया। पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए काउंसलिंग को एक्सटेंड भी किया जाए बिकॉज वी आर हैविंग अ टाइम, बट लेट्स सी क्या होता है। बट इन द मीन टाइम
अभी तक सीटें नहीं मिली हैं, नॉट टू वरी, स्टे राउंड आप अप्लाई कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको सीटें मिल जाएंगी तो वेल एंड गुड, एंड वी विश कि आपको सीटें मिल जाएं, बट इन अ केस नहीं मिलती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। जो भी सीटें होंगी, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्लॉज होगी, उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका ब्रांच नहीं, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या बजट आपके पास मोर देन इनफ है तो आपको ब्रांच भी करके देंगे एज पर योर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एज पर योर एलिजिबिलिटी क्लॉज। बिकॉज मल्टीपल स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज किए जा चुके हैं। स्टे राउंड में सिर्फ 1 या 2 स्टेट्स होंगे जहां पे रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, तो आपको अभी केयरफुली चलना पड़ेगा अगर सारी चीज़ें आप खुद से कर रहे हो। काउंसलिंग इन दिस सेशन हैज़ बिकम अ रॉकेट साइंस, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ चॉइस फिलिंग करने से आपको सीट मिल जाएगी तो बिलीव मी, दिस इज नॉट हैपनिंग इन दिस सेशन। बिकॉज हर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर रहा है, आपको सीटें नहीं मिल रही हैं बट उनको सीटें मिल रही हैं, तो आपको समझना पड़ेगा द साइंस बिहाइंड इट एंड द एक्सपीरियंस बिहाइंड इट। बिकॉज इट अ सिंपल थिंग एंड सेम थिंग एज क्रिकेट का बैट हर कोई बाई कर सकता है। इवन यू कैन बाई द सेम बैट विच इज यूज्ड बाई MS धोनी और सचिन तेंदुलकर ऑल्सो, बट वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे आप? अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो बॉल ऑफ सिलेक्शन आप कैसे करोगे? कौन से बॉल पे हिट 6 करना है या किस पे सिंगल लेना है या किस पे डॉट प्ले करना है, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर अ काउंसलर एंड कंसल्टेंट कम्स इनटू द रोल प्ले, बिकॉज अ काउंसलर एज वेल एज द कंसल्टेंट, जो दोनों होते हैं, द हाइब्रिड पीपल नो एग्जैक्टली कि कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, किस बजट में सीटें मिल सकती हैं, किस रेंज पे सीटें मिल सकती हैं, कौन सी स्टेट्स को अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज आप राजस्थान गए, MP गए, क्लॉज और एलिजिबिलिटी क्लॉज चेंज कर दिए गए थे। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आप चीज़ें चल रहे हो, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आप काउंसलिंग कर रहे हो, बट रूल्स एंड रेगुलेशन आर टोटली डिफरेंट। इन द मीन टाइम, फॉर योर स्ट्रे राउंड, almost each and every institute has increased their fees, and for that MCC has also published a notice कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो सीट मैटर फी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लो, क्योंकि फी स्ट्रक्चर इंक्रीज किए जा चुके हैं। तो जो चीज़ें आपको सस्ते में मिल सकती थी या अच्छे ब्रांच या अच्छे कॉलेज में मिल सकती थी, अभी वही सीट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डाउटफुल है। इन द मीन टाइम बजट भी इंक्रीज होगा, और जितना आपने सोचा हुआ है या जहां तक आपने इंक्रीज कर लिया था उससे भी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा, तब जाके कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी। वो भी तभी होंगी अगर आपकी एलिजिबिलिटी बची रहती है। एलिजिबिलिटी चली गई तो नथिंग कैन बी डन। एज सिंस द बिगिनिंग आई एम सेइंग, डॉक्यूमेंट है, पैसा है, डॉक्यूमेंट भी, NRI डॉक्यूमेंट भी आपने रेडी कर लिया है, बजट भी रेडी है, बट सीट नहीं अवेलेबल है। इन दिस सेशन वी आर हैविंग द इंक्वायरी फॉर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथो और PSM का क्या डिमांड होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। टिल द डे दिस सेशन बिफोर हमारे पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी डिमांड नहीं हुआ करती थी, बट इन दिस सेशन पीपल आर कॉलिंग एंड टारगेटिंग अस एंड दे आर रेडी टू मेक द पेमेंट फॉर द complete and the guaranteed seat for pharmacology, PSM, pathology, FMT, forensic medicine. Each and every branch has a demand. ये आपको समझना पड़ेगा, द बबल विच इन यू आर लिविंग, कि आपको क्लिनिकल सीटें मिल जाएंगी। कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि अगर आप अभी नहीं आते हो तो इट विल बी वेरी मच लेट, और उस समय पे अगर आप आते हो तो एज आई एम स्पीकिंग बजट इंक्रीज करना होगा, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो भी तभी पॉसिबल होगा जब आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। मल्टीपल स्टेट्स हैज चेंज देयर रूल, अगर वो रूल्स आपने नहीं समझे हैं, नथिंग कैन बी डन, आपको ड्रॉप के लिए जाना ही पड़ेगा। एंड इन द मीन टाइम आपके ऑलमोस्ट 1.5 मंथ ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट 15 to 20 डेज आप और ज़्यादा वेस्ट कर लोगे इन द एजेंट ग्रुप, और सारे एजेंट्स के जो मल्टीपल कॉल्स आ रहे होंगे। आई एम श्योर ईच एंड एवरी कैंडिडेट मस्ट बी गेटिंग ऑलमोस्ट 100 to 150 कॉल ईच डे कि हम आपकी सीट रेडी कर देंगे, बुकिंग कर देंगे, ब्लॉकिंग कर देंगे, पेमेंट कर लो, XYZ। बिलीव मी, नथिंग विल हैपन ऑन कैमरा, आई एम स्पीकिंग, नथिंग विल हैपन टू समथिंग लाइक दिस। सारी चीज़ें काउंसलिंग से मिलेंगी, लेकिन काउंसलिंग और बैटिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बैट आप जरूर बाई कर सकते हो। यू कैन बाई द सेम बैट और द सेम कंपनी बैट, द सेम वेइंग बैट ऑफ MS धोनी एज वेल एज सचिन तेंदुलकर, बट वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? एंड एक्सपीरियंस इज नॉट समथिंग विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। उसके लिए आपको हाइब्रिड चीज़ें देखनी होंगी, बिकॉज एट दिस मोमेंट नाइदर अ काउंसलर कैन हेल्प यू, नॉट जस्ट अ कंसल्टेंट कैन हेल्प यू, बट अ पीपल और द लॉबी हु इन हाइब्रिड इन द मोड, जो काउंसलर भी हो और कंसल्टेंट भी हो, वहीं आपकी चीज़ें करके दे सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो 100% मिलेंगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज। रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें मोस्ट प्रॉबली आज के डेट से स्टार्ट हो जाएंगी फॉर योर स्टे राउंड।
एलिजिबिलिटी रूल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, कोई और कंफ्यूजन है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545935519. एज वेल एज यू कैन पिंग मी ऑन द व्हाट्सअप अगर कॉल नहीं रिसीव हो पा रहा है तो. वी आर रियली सॉरी फॉर दैट एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कैंडिडेट. नहीं हो पा रहा है व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करके रखो, रिप्लाई जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा. एंड इफ यू आर रेडी टू मूव एंड यू आर रेडी टू प्रोसीड देन ओनली कुछ पॉसिबल होगा, बिकॉज द काउंसलिंग हैज कम टू एंड. अब सिर्फ 10 to 15 डेज का ही प्रोसेस बचा हुआ है एंड इसके बाद काउंसलिंग कंप्लीट कर दी जाएगी. स्पेशल स्टे राउंड होगा, पॉसिबिलिटी सिर्फ 5 to 10% आप लेके चलो. स्पेशल स्टे राउंड कुछ स्टेट्स में पॉसिबल हो सकते हैं बट ऑल इंडिया में चांसेस सिर्फ 5 to 10% के हैं, क्योंकि सिर्फ 600 से 800 सीटें आएंगी. अब वो भी इस राउंड में सीटें अलॉट हो जाएंगी और दे विल बी ज्वाइनिंग द सीट बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आर डिफरेंट. But government and the MCC as well as the NB, NMC has played a major role and we salute them for that. MOHF and everything, the decision taking for the 0 percentile has come to a great role play. जितनी भी सीटें अलॉटमेंट या जितनी सीटें वेस्ट होती थी उससे ज़्यादा आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी तक की सीटें ज्वाइन हो रखी हैं. सो अ बिग एंड द ग्रेट सल्यूट फॉर देम. जो आप करना चाहते थे वो आपने कर दिया है. द 0 seat wastage will be in this session. Almost 0 seat wastage will be done in NEET PG 2023 and the history has been made. अगर अभी भी सीटें नहीं मिले तो you can contact me and we can do the things. Thank you and thank you so much for watching this video. Wish you all the very best for your upcoming days. Thank you.